السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور میرے ساتھ موجود ہیں خصوصی بات چیت کے لیے راجیہ سبھا کے سابق ایم پی اور آئی ایم سی آر کے چیئرمین جناب محمد ادیب صاحب۔ ان دنوں ہندوستان میں لگاتار مسجدوں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، مسجدوں کو نوٹس بھیجا جا رہا ہے، مدرسوں کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک ایک دن میں تین تین چار چار مسجد کو مختلف علاقوں میں بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ ابھی جے پور میں ایک شاندار مسجد کو بلڈوز کر دیا گیا۔ وارانسی کی 1000 سال پرانی مسجد ہے، اس کو نوٹس بھیج دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے وارانسی میں ایک اور مسجد کو، اور وہ مسجد بھی تقریباً 300-400 سال پرانی تھی، اس کو ڈیمولش کیا جا چکا ہے۔ راجستھان کے بارمیر میں بھی کئی مسجدوں کو نوٹس بھیجا گیا ہے۔ بہار میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مسجدوں کو نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ ان تمام ایشو پر بات چیت کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ مسلمانوں کے پاس لائے حمل کیا ہے، مسلمان کیسے اس کو روک سکتے ہیں۔ ادیب صاحب موجود ہیں اور لگاتار اس طرح کے واقعات پر آواز اٹھاتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادیب صاحب، ملا ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ یہ جو لگاتار مسجدوں کو نوٹس بھیجا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو اور ہمارے مدارس کو اللیگل بتایا جا رہا ہے، آخر یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا منصوبہ ہے ہمارے پاس اس کو روکنے کے لیے؟ دیکھیے، شروعات میں تو یہ احساس ہو رہا تھا کہ کچھ مقامی لوگ ہیں، وہ کچھ ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب تو یقین ہو گیا اور یہ مکمل طور پر ایک سازش مکمل رچی گئی ہے کہ ہم اس ملک میں کسی دن بھی مسلمان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ پہلے بلڈوزر چلنے شروع ہوئے، ہم انتظار کرتے رہے کہ بھئی اب شاید ختم ہو یہ قصہ، لیکن جس طریقے سے یہ سازش ہوئی رچی گئی ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن ہماری کوئی نہ کوئی مسجد، درگاہ، خانقاہ، قبرستان پہ بھگوان نہ پرکٹ ہو رہے ہوں اور اس کو توڑا نہ جا رہا ہو۔ اس ملک میں سپریم کورٹ کو کچھ دکھائی نہیں پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ بلڈوزر نہیں چلا سکتے جب تک کہ آپ پراپر نوٹس نہ دیں۔ روز بلڈوزر چل رہے ہیں، سپریم کورٹ سنجان نہیں لے رہا، کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں چلا رہا ہے۔ ہم روز کے روز یہ ستم جھیل رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ جو اپنے کو سیکولر پارٹیاں کہتی ہیں، وہ دور سے یہ تماشا دیکھ رہی ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے کوئی دوسرا راستہ بچا نہیں ہے، صرف ایک راستہ تھا کہ ہم احتجاج کرتے ہیں۔ جی، شاہین باغ میں خواتین نے احتجاج کیا، گاندھینین موومنٹ ایک پہلا موومنٹ ہوا ہندوستان، آزاد ہندوستان میں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سالوں سال ہو گئے بے قصور لوگ مسلمان جیلوں میں بند ہیں۔ تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، اس ملک میں اپنا احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو سیکولر لوگ ہیں ان کو تو سوچنا چاہیے تھا۔ افسوس اتر افسوس، ہر پارٹی خوف زدہ ہے اور ہندو ووٹ لینے پہ تیار ہے۔ اسی لیے میں سب کے سامنے آپ کے ذریعے سب سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے سوچئے، اب مختلف جماعتوں میں مت بٹیے۔ لوگ سیاسی جماعتیں اپنا کھیل کھیل رہی ہیں اور جو ہماری دینی سیاستیں ہیں، ملت کی جو جماعتیں ہیں، وہ یا تو ڈر گئے ہیں یا پھر یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہم کریں وہ ہو۔ میرے ذہن میں خاکہ آیا تھا، میں نے تقریباً 100 حضرات کو، ہندوستان کے چنندہ لوگوں کو خط لکھا ہے اور یہ کہا کہ اب یہ ملت کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ کوئی ایک تحریک، کوئی جماعت نہیں چلائے گی یا کوئی انڈیویجول شخص نہیں چلائے گا، پورے ملت اسلامیہ کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھ لیں، دنیا میں یہ بات معلوم ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم میانمار اور غازہ کے بعد تیسرے نمبر کے مسلمان اس زمین پر ہیں، لیکن جب بھی یو این کے مختلف اور یونائٹڈ نیشن کے دوسرے جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ایم پیز ہیں، وہ بول رہے ہیں کہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے،
लेकिन यहां से एक जवाब आता है, वी रिजेक्ट, हम रिजेक्ट करते हैं, हम जमहूरियत में हैं। आज मसला सिर्फ इस बात का है, मैं आपके चैनल के जरिए एक पैगाम देना चाहता हूं अपने मिल्लत इस्लामिया को और उन लोगों को जो अपने को सेकुलर पार्टियां कहते हैं। बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, वो हमारी किसी शिनाख्त को, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां थी उनका तो कुछ जिम्मेदारी बनती थी, सिर्फ जबानी कहने के लिए कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। अरे खतरा कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है क्या? हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हम पे जो सितम होता है तुम्हारी तक आवाजें नहीं जाती? हमारे लोगों को ट्रेनों में मार के फेंक देते हैं, तुम्हारे दिल में दर्द नहीं उठता? सेकुलर कहते हो अपने को? कब बोलोगे? तुमको ये फिक्र है कि कहीं हम पे अपीजमेंट का चार्ज ना लग जाए, कहीं हमारा हिंदू वोट ना बढ़ जाए, तो अपने हिंदू वोटों के साथ अपनी दुनिया बसाओ, हमको छोड़ दो। हम तुम इस मुल्क में इसलिए नहीं आए थे कि हम हाकिम बनेंगे, हम इसलिए आए थे कि इज्जत के साथ छोटे भाई की हैसियत चलाएंगे। वो भी दुबार हो गया, उसके लिए भी कोई बोलने वाला नहीं है। इसीलिए हम चाहते थे, हमने जो खत लिखा है वो यही कहा है कि जब ये पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो, उसके आसपास दिल्ली में हिंदुस्तान भर के जितने अकाबरीन हैं, उलमाए कराम हैं, जमातों के लीडर हैं, जो प्रोमिनेंट एमिनेंट मुस्लिम्स हैं, वो बैठ के एक फैसला करें, एक एजेंडा तैयार करें। आप देखें कश्मीर में जो हालत है, हमने अपने को अलग कर लिया है, यानी कश्मीर जो है, कश्मीर का मुसलमान सफर करता रहे, हम देखते रहे। आज हम पे ये बारी आ गई। आसाम में यही मसला हो गया, बंगाल में सरकार बदलने के बाद जो बुलडोजर चल रहे हैं वो किसके मकानों पे चल रहे हैं? कौन लोग जेल जा रहे हैं? लेकिन अब तो ये हद हो गई कि कोई एक दिन तो बच जाए। सरकार कहती है कि हमने जो काम हम कर रहे हैं, आतंकवादियों को पकड़ रहे हैं, घुसपैठियों को पकड़ रहे हैं, चलो भाई नहीं बोलो, लेकिन हमारी खानकाहें, हमारी मसाजिदें, हमारे कब्रिस्तान रोज तुम खोलो। कोई एक आदमी कह दे कि इसमें भगवान प्रकट हो गए, इसमें मंदिर मौजूद था, बगैर कुछ कहे बुलडोजर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ये साहब, कहता है, मैं अर्ज आपने कर दूं जी जी अर्ज तो? कीजिए आप पहले। जी, मैं ये चाहता था कि अब वक्त आ गया है, एनफ इज एनफ। इस वक्त कोई जमात नहीं आगे आए, कोई इंडिविजुअल आगे नहीं आए। मिल्लत इस्लामिया के दानिशवरान और जो जो उलमाए कराम हैं, जो पीपल ऑफ सब्सटेंस हैं, वो एक एजेंडा बनाएं और वो एजेंडे में लिखें कि हमें अब क्या करना है। अगर फिर भी हमारे ऊपर सितम होता रहे, तुम दूर से देखते रहो, तुम्हारे सीनों में जुम्बिश ना हो, तुम्हारे कानों में आवाज ना आए, तुम्हें दिखाई ना पड़े, अदालतें चुप रहें, तो तुम क्या करोगे? अगर तुम हमारे लिए सड़कों पे आने को तैयार नहीं हो और अगर तुम सेकुलर पार्टियां हमारे लिए मिलने को तैयार नहीं है, तो तुम अपनी दुनिया अलग बसाओ। हमको, हमारे पास सिर्फ एक ही चारा रह गया है, हम सड़कों पे आएंगे तो देशद्रोही कहलाएंगे, हमारे बच्चों को जेलों में डाला जाएगा। हम चाहे कितना ही पुरअमन एहतिजाज करें, शाहीन बाग का मिसाल आपके सामने है, उन खवातीन को सलाम है। अब सिर्फ एक उम्मीद ये थी कि जो सेकुलर हिंदू हैं और बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उनको हम सलाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका शुक्रिया करते हैं, लेकिन वो भी बेबस हैं, क्योंकि वजह यह है कि हमने कोई फैसला नहीं किया है। मुसलमान कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम सब लोग बैठें और एक इंडिविजुअल लीडरशिप ना हो, अब इज्तिमाई क़यादत हो, क्योंकि इंडिविजुअल लीडरशिप का वक्त निकल चुका है। और उस इज्तिमाई क़यादत में हमारे उलमाए कराम भी हों, उसमें हमारे दानिशवरान भी हों, उसमें हमारे अकाबरीन भी हों, उसमें हमारे वो लोग भी हों जिन्होंने कोई ना कोई काम किया है। वो फैसला कर लें, सेकुलर पार्टियों को आगाह कर दें कि हम पे सितम होता रहेगा, तुम दूर तक देखते रहोगे। अब वो वक्त खत्म हो गया है।
अगर तुम दूर से देखकर सिर्फ हमारे वोटों की लालच है तुमको, तो फिर तुम अपनी दुनिया अलग बसाओ और हम अब गांधी के उस फार्मूले पे चलेंगे। और वो फार्मूला जो था वही हमारा एक इशू रह गया है, और वो है नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन। हम नॉन वायलेंस रहेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे और नॉन कोऑपरेशन करेंगे, यानी ना इलेक्शन में हिस्सा लेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे। तुम अपनी दुनिया बनाओ, अपनी दुनिया बनाओ, अपने हिंदू वोटों को बचाओ, हमारे सरों पे ऊपर फैसले मत करो। इसी बुनियाद पर मैंने बहुत लोगों को खत लिखे हैं और आपके इस चैनल के जरिए इत्तला देना चाहता हूं कि मैं आपको एक नंबर मैंने दिया है, उस पे आप रुजू करें, ईमेल दिया है, इस पे लिखें कि कोई दूसरा वक्त आएगा कि आपको जागने के लिए, कोई और वक्त होगा जब आप बोलेंगे। आप सियासी लोगों में कब तक उलझे रहेंगे? अभी बंगाल का इलेक्शन हुआ, जी। आपने देखा एक खातून नाच नाच के गा गा के बीजेपी को बुरा भला, आरएसएस को बुरा भला, और जब वो जीत गए तो फौरन पलट के वहां चली गई। एक मौलवी गुजरात का, जी। उसको ले जाके बंगाल में इलेक्शन लड़ाया गया, वहां के लोकल आदमी का हक छीन कर वो भी वहां चला गया। जब ऐसे क़यादत करने वाले लोग आएंगे तो आप इनसे उम्मीद रखते हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस में और पावर में रहकर इस मुल्क को तोड़ते रहेंगे। हम हिस्सेदार नहीं बनना चाहते। एक एजेंडा तैयार होगा, उस एजेंडे पे जो भी हम लोग तैयार करें, लेकिन मेरी गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ के अपनी तंजीमों से कहना चाहता हूं, अपने काबिलीन से कहना चाहता हूं, अपने लीडरों से कहना चाहता हूं, खुदारा इसको इंडिविजुअल कोई लीडरशिप मत डेवलप कीजिए, एक इज्तिमाई कैफियत तैयार कीजिए, कौम को पहचानवाइए, अपनी हैसियत को जनवाइए, नहीं तो यहाँ कुछ भी बचने वाला नहीं है। आप पर्सनल लॉ बोर्ड को भी आगे आना चाहिए, वो शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी थी, उनको भी इसमें शरीक होना चाहिए। जितने भी लोग तंजीमों के हैं, चाहे वो दरगाह के हों, चाहे निजामुद्दीन के हों, चाहे अजमेर शरीफ के हों, चाहे शिया कम्युनिटी के हों, चाहे हनफी हों, शाफई हों, कोई भी हो, सब बैठें और फैसला करें कि इस मुल्क में अब हम कैसे रहेंगे। खुदा के वास्ते अगर ये आपके साथ नहीं खड़े होते हैं, ये पैगाम सेकुलर पार्टियों को देना चाहता हूं, जो तुम सीना ठोक के सेकुलर सेकुलर करते हो। कभी एक वक्त तुम बोले कि ये लोगों को क्यों मारा जा रहा है? कभी तुमने रेजोल्यूशन पास किया? कभी तुम सड़क पे आए? हाँ, दलित भाइयों के साथ जब हुआ तो तुम खड़े हो गए, तुम्हें वोट चाहिए था। हमारे साथ इसलिए नहीं कि हम अभी तक मुंतशिर हैं, हमको शौक है सियासत में जाने का और जूती उठाने का। मैं चाहूंगा कि आप हजरात दिल से सोचें, कभी दिल में ये सोच एहसास हुआ है कि आपके बच्चे इस मुल्क में कैसे रहेंगे? बिल्कुल। कभी ये फिक्र हुई है आपको कि अदीब आप साहब, किस मुकाम पे खड़े हैं? अदीब साहब, आपने जो लेटर भेजा है, तो किन लोगों को लेटर भेजा है? क्या लिखा है आपने लेटर में? और प्लान मैंने क्या है? मैंने लेटर में यही लिखा जो इस वक्त आपको बोला है जी। कि वक्त आ गया है, हमें फैसला करना पड़ेगा। किसी जमात के बस की बात नहीं है, किसी इंडिविजुअल के बस की बात नहीं है, इसलिए कि ना आपके पास मौलाना आजाद है, ना आपके पास अली बिरादरान है, ना खान अब्दुल गफ्फार खां है, ना कोई ऐसा आपके पास लीडर है जो आपकी क़यादत कर सके। अब इज्तिमाई क़यादत की ज़रूरत है। इनफरादी क़यादत को छोड़ दीजिए, ये लालच छोड़ दीजिए कि हमारी जमात बड़ी हो जाए और उसकी जमात छोटी रह जाए, हमारी जमात को इनाम मिल जाए। मैं भी एक तंजीम चलाता हूँ, कतन मैं अपनी तंजीम के ज़रिए तहरीक नहीं चलाना चाहता। हाँ, कोऑर्डिनेटर करने को तैयार हूँ। मैंने इसीलिए कहा कि मैं बहैसियत एक वर्कर के आपके साथ, बहैसियत एक मुसलमान, दर्दमंद मुसलमान की हैसियत से मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये सबके साथ सब मिलकर एक फैसला दे दें, एक पैगाम दे दें
हाकिम वक्त को भी, और जो लोग हुकूमत करने की लालच में या लाइन में खड़े हैं उनको भी बता दें, हम इस मुल्क के शहरी हैं, कोई गुनाह नहीं किया था हमने ये नहीं कहा था। और आपको बड़ी खुशी होगी कि ज्यादातर जमातों ने ये फैसला कर लिया है, और ये फैसला ऐसा होगा कि हिंदुस्तान की तारीख बनेगी, ये मुल्क बचेगा, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा। और अगर सेकुलर पार्टियों ने अब भी अपनी अपनी पार्टियों के लिए लड़ाई लड़ी और मुसलमानों की गर्दनों पे फैसले होते रहे, आप कैटलिस्ट हैं। और अगर वो आपकी बात पे खड़े नहीं हुए, अगर ये लोग सेकुलर पार्टियां ये एहतजाज करती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग थी कि बुलडोजर नहीं चल सकता एक तरफा, कोई बोला इस पे तो बुलडोजर चलते, मुसलमान क्या करेगा? वो चीख पुकार करके चुप हो गया, गरीब है, यही तो सजा है उसकी। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वंदे मातरम नहीं गाना होगा, कंपलसरी नहीं है, आसाम ने कहा कि ये होगा, कोई सेकुलर पार्टी ने कहा कि हम इसके खिलाफ खड़े होंगे? नहीं कहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगे हमको चिढ़ाने के लिए, क्योंकि ये दरगाह हिंदुस्तान में पहली दरगाह थी जिसने मॉडर्न एजुकेशन का तस्वुर दिया था। उस दरगाह में ये नारे लगाए गए। जामिया मिलिया इस्लामिया जिसने आजादी के हिंदुस्तान का एक हिस्सा रही है, वहां सर वारकर के 100 साल का जश्न मनाया गया, फिर भी तुम चुप हो, तुम भी अब भी खामोश हो। सेकुलर पार्टियों ने इसका एहतजाज नहीं किया। मुसलमान करेगा तो वो तो जेल उसे जाना ही है। जब एक गांधीनियन मूवमेंट हमारे पास है, गांधी एक फैसला कर गए थे, नॉन कोऑपरेशन। तो नॉन कोऑपरेशन अब सिर्फ यही है कि तुम अपनी दुनिया बनाओ। अब हम किसी न तुम्हारे वोटर हैं न तुम्हारे इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अपनी अपनी दुनिया बना लो। मैं आखिर में आप सबसे आपके चैनल के जरिए ये ऐलान करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं, अल्लाह के वास्ते सोचना शुरू करें। जो कौमें सोचती नहीं हैं वो जवाल की उस तह पर रहते हैं जहां हम खड़े हैं बेबस खुले आसमान के नीचे। जो आए हमें जब चाहे हम पे सितम ढा दे, कोई बोलने वाला नहीं है। दुनिया में ये बात पहुंच चुकी है कि म्यांमार और गाजा के बाद मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। वहां के पार्लियामेंट के मेंबरान बोल भी रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन बोल भी रही है, लेकिन हिंदुस्तान की सरकार कहती है हम रिजेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनसे कोई उम्मीद मत रखिए। हिंदुस्तान के बाहर किसी किसी हुकूमत से कोई तवक्को मत करें, अपना फैसला खुद करें। ये पैगाम पहुंचा दें उन लोगों को। और जो ये नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पे अगर आप चाहें वजाहत करना चाहें तो करें, ईमेल पे लिखें, अपनी राय दें। और अगर आप ये समझते हैं कि ये गलत है तो कोई दूसरा सलूशन भी बता दीजिए। सबके तो चोटियां उठा ली, सबके पास तो हो आए, आखिर नतीजा क्या हुआ? जो कुछ नहीं थे वो सब कुछ हो गए, हम जहां थे उससे पीछे खड़े हो गए। इस मुल्क में एक मुजरिम की हैसियत से हमारी हो गई। अरे हम तो मुजरिम हैं, हमारे मजहब को तो छोड़ दो, हमें जीने की आरज़ू तो बाकी रहने दो। कब तक सितम ढाओगे? तुम्हारे सीनों में दर्द नहीं उठता है? इन अदीब अल्फाज साहब, के साथ जी। आप बार-बार सेकुलर पार्टियों पे हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सेकुलर पार्टियाँ मुसलमानों का साथ नहीं देती है। लेकिन देखा जा रहा है कि सेकुलर पार्टियाँ इन दिनों खुद अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। एनसीपी खत्म हो गई, शिवसेना खत्म हो गई। ममता बनर्जी इतनी मजबूत और ताकतवर लेडी, जैसे ही बंगाल का चुनाव हारती है, उनकी पार्टी टूट जाती है। 20 जी। एमपीज़ बगावत करते हैं, एमएलए उनके साथ उनका साथ छोड़ जाते हैं, राज्यसभा के एमपीज़ रिज़ाइन कर रहे हैं। शिवसेना के जो बचे-खुचे एमपी थे, उन्होंने भी बगावत कर दिया
اور اب سماجوادی پارٹی کے بارے میں خبر چل رہی ہے، تو جو سیکولر پارٹیز ہے جن کو مسلمانوں نے ووٹ کیا، جن سے مسلمانوں کو امیدیں تھی، آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ وہ پارٹیاں ہی ختم ہو رہی ہے اور وہ پارٹیاں خود اپنا وجود بچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ ان کو یقین مانیے گا، یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو لیڈر کہتے ہیں، جی جس کی کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو، جس کی آنکھوں میں شرم نہ ہو، ان کو ہم اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اور آپ یقین کیجئے گا، یہ جتنے بھی بھاگ رہے ہیں، یہ جی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں حقہ پانی بند کرنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ ان کو بلانا نہیں چاہیے تھا، ان کے گھروں میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس میں صرف ہندو نہیں ہیں، آپ کے سو کالڈ مسلم لیڈر بھی ہیں، دولت کے نشے میں چور ہیں، دولت کمانے کا جنون پیدا ہو گیا ہے، اس ملک کو لمحے لمحے توڑ رہے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہوں، ان پہ کوئی اعتبار مت کریے۔ ہاں، بہت سے یوٹیوبرز ہیں جو چلا چلا کے ہمارے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو یہ میٹنگ ہو، جس میں یہ طے ہو، اس میں ہم ان کا شکریہ ادا کریں، ان سیکولر ہندو بھائیوں کا شکریہ ادا کریں، ان کا احسان مانیں، اور جو سیکولر دوسری جو جماعتیں ہیں، سکھ بھائی ہیں، کرسچنز ہیں، دلت ہیں، ان سب کے ساتھ مل کر ایک کوآرڈینیشن کریں، اور وہ کوآرڈینیشن یہ ہو کہ ہم اس کانسٹیٹیوشن کو، جس کے پڑاخشے اڑا دیے گئے ہیں، سپریم کورٹ اور دوسری عدالتیں جس نے دیکھنا بند کر دیا ہے، ان کو دیکھنے کی کچھ ہمت دلائیں، ان میں ہمت دلائیں کہ تم ایک زمین پر اللہ کے نمائندے ہو، انصاف کرنا تمہارا کام ہے، لیکن تم انصاف کرنا بھول گئے ہو، تم اللہ کے نمائندے نہیں ہو، تم حکومتوں کے نمائندے ہو، حکومتوں کی بات مانتے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہم جب کر سکتے ہیں جب پہلے ہم جمع ہوں، ہم اپنے کو مضبوط کریں، پھر سکھ بھائیوں کے پاس جائیں، کرسچن بھائیوں کے پاس جائیں، دلتوں پچھڑوں کے پاس جائیں، جن کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ لیکن پہلے ہم کو مضبوط ہونا پڑے گا، ہم کو پہلے اپنی ایک آواز اٹھانی پڑے گی۔ یقینی طور پر یہ پہلا قدم ہوگا جو انشاءاللہ جولائی میں پارلیمنٹ سیشن کے آس پاس میں چاہتا ہوں کہ 200-400 لوگ جو پیپل آف ایمیننس ہیں وہ بیٹھیں، ایک خاکہ بنائیں، ایک ایجنڈا تیار کریں، پیغام حاکم وقت کو بھی دے دیں، اور جو لوگ لائن میں لگے ہیں ان کو بھی پہنچا دیں کہ ہم اگر برباد ہوں گے تو تم بھی بچو گے نہیں۔ یہ جو خواب نہرو اور گاندھی نے دیکھا تھا، یہ چکنا چور ہو جائے گا اور تم اس کے ذمہ دار کہلاؤ گے۔ کم سے کم ہم ذمہ دار نہیں کہلائیں گے، ہم نے آخری لڑائی تک تمہارا ساتھ دیا ہے، ہم نے ہمیشہ جھنڈے کو سلام کیا ہے، ہم نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں دیا ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، میری گزارش ہے جی آپ سب حضرات سے کہ ملت ٹائمز آپ کو ایک نمبر دے گا، اگر آپ وضاحت چاہتے ہیں، تفصیل چاہتے ہیں تو اس پہ لکھیے گا، سوچئے گا۔ آپ اس زمین پر اللہ نے آپ کو نعمت بنا کے بھیجا تھا، زحمت مت بنیے، ہمیں حساب دینا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے تھے، رحمت بن کر آئے تھے، ہم زحمت بن گئے، حساب دینا ہے۔ میرے عزیزوں، اس پہ سوچئے گا، دل سے سوچئے گا، تو وہ جو عمل ای کرنے کی میل آئی کوشش ڈی کیجیے اور گا۔ نمبر جاری کر رہے ہیں ادیب صاحب، اس پر لوگوں کو اپنا رد عمل دینا ہے، مسجدوں کو بچانے کے لیے جو آپ میٹنگ بلانے جا رہے ہیں کہ کیا کرنا جی چاہیے۔ جی، بالکل۔ بالکل، تو عام لوگوں سے آپ نہیں یہ رائے طلب کر رہے ہیں یا کچھ مخصوص افراد سے؟ نہیں، اس میں ہر شخص کو شامل ہونا ہے، لیکن خاص طور سے اکابرین، علماء کرام، مسلم جماعتیں، پیپل آف سبسٹنس، جو ایک مل کے ایک رائے بنائیں جی اور پھر اپنی قوم سے کہیں کہ تم یہ کھڑے ہو۔ جو حضرات مسلم ایم پیز یا ایم ایل ایز مختلف سیکولر پارٹیوں میں ہیں، ان کی کون سن رہا ہے؟ اس لیے نہیں سن رہا ہے نا کہ ان کے پیچھے ان کی قوم بھی نہیں ہے۔ بالکل، تو آپ ان کو بھی قوت دیں اور ان کو بھی احساس دلائیں کہ تم وہاں گئے ہو، تمہارے پیچھے ہم کھڑے ہیں، تم ہماری قیادت کرو گے یا جوتی اٹھاؤ گے؟
बिल्कुल, या उन्हीं की जूती उठाओगे, अपने घरों को, अपनी मस्जिदों को, अपनी खानकाहों को बुलडोज कराते रहोगे? उनको भी कुव्वत दीजिए और उनसे कहिए कि तुम अपनी पार्टी में, तुम्हारे पीछे हम जब तक खड़े हैं, जब तक कि तुम अपने इश्यूज के लिए हुकूमत से, अपनी पार्टियों से लड़ने को तैयार नहीं हो। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एक एजेंडा तैयार होना चाहिए। लेकिन कोई अगर इसको इंडिविजुअल तौर पर फायदा उठाना चाहेगा तो ये तहरीक फेल हो जाएगी। इस वक्त मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं या मेरी तंजीम IMCR कोऑर्डिनेट तो करने को तैयार है, लेकिन ये क्रेडिट लेने को तैयार नहीं है। एक आवाज लगाई है मैंने, आपके दिलों को अगर ये छुए तो अल्लाह के वास्ते इस पे अमल कीजिएगा। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे थे मोहम्मद अदीब साहब से, जो मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, दरगाहों और इस तरह की इमारतों को बचाने के लिए एक कौमी मुहिम चलाने जा रहे हैं। नेशनल कैंपेन का उन्होंने आगाज़ किया है। देश के तमाम जो रहनुमा हैं, मिल्ली रहनुमा हो, समाजी रहनुमा हो, सियासी रहनुमा हो, उनको उन्होंने लेटर भेजा है। दिल्ली में एक मीटिंग भी उन्होंने तलब की है और इस पूरे मामले पर कि क्या करना चाहिए, उन्होंने अवाम की राय भी तलब की है। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और मेल आईडी भी, तो आप अपना रद्द अमल भी अदीब साहब तक भेज सकते हैं कि आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अदीब साहब, आपने एक मनसूबा बनाया है, अवाम तक एक पैगाम पहुंचाया है और मुझे उम्मीद है कि कौम का सपोर्ट मिलेगा। हमारे जो रहनुमा हैं वो भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, रास्ता बचा नहीं है। लगातार मस्जिद, मदरसों, दरगाह और खानकाहों को निशाना बनाया जा रहा है। रात के अंधेरे में बगैर किसी नोटिस के कभी मस्जिद को, कभी मदरसा को डेमोलिश कर दिया जाता है और अब ये मामला हर एक तक पहुंच चुका है। कभी कभी कभार एक हो जाता था, लेकिन अब ये कॉमन हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी राय लिखिए, मिला टाइम्स को सपोर्ट कीजिए, हमारी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शख्सियत के साथ, जब तक दीजिए इजाज़त। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिला टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिला टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिला टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।